Guys, so we are back again with our chapter number 11, marketing. So as you know that in last lecture we completed the three various types of packaging as well as the importance of the packaging. So I hope you remember what all three types of packaging was there. Number one was primary packaging, number two was secondary packaging, and number three was transportation packaging. I gave you the example of Colgate. The tube in which the paste is there is called as primary packaging. The box in which tube is kept is called as secondary packaging, and the big box in which numerous Colgates are packed or tubes are packed is called as a transport packaging. So these are the three types of packaging which we studied about. Later on we also studied about the importance of packaging. So the importance of packaging was regarding the health standards. The health issues have become so much prominent right now that the packaging has become so much important. I gave you the example of McDonald's over there. Another example was of water bottle for the first one, rising standards of health. The second one was self-service. For self-service, the example was McDonald's. Then third was innovative opportunity. Innovative opportunity, I showed that tissue paper which was made like a tablet, like a chocolate. So it was an innovative opportunity. And the fourth one is product differentiation, like you want to differentiate your product from others, like Pringles I said. So these are the four examples of four different points of the importance. Today we will be moving towards functioning of the packaging. There are around 3 to 4 points in that also. Easy to understand, no need to take it much rigorously. Just go through it most prominently. You would be easy with it. You'll be knowing about it. So we'll just go through it. We'll just read it once so that we can make it clear and the concept is done so that we can count it completed. So let's start with that. So what are the functions of packaging? We'll read it. As stated above, packaging performs a number of functions in the marketing of goods. Some of the important functions are as follows. Product identification. So packaging greatly helps in identification of the product. For example, Colgate in red color or Pond's cream jar can be easily identified by its package. I said you, like when you'll go to the mall, in mall, like product are based on the category. Like you will find all the noodles at one place. You will find all the chocolates at one place. All the biscuits will be at one place. So like, there will be so many different brands, like 50 to 70 different packets of biscuits will be there. Now we want customer to buy our biscuit only. So how? We will make our packaging in such a way that that packet gets fixed in a person's mind. Because see, you and me, we are adults, we can read it. But like for example in biscuit industry, it's for kids. And like kids, like जो बच्चे होते हैं, they are so small. So many people are there जिन लोगों को नाम भी याद नहीं रहते होंगे. Like the second, third, fourth standard में पढ़ने वाले बच्चे, many a times they are not aware about which biscuit they are eating, but they know the packet color. So that kid who is of 5 years, 7 years of age, who don't know your product, that kid will just say that this was the packet I want to buy, or this was the packet we ate last time and I want that packet. So like that package is so much influencing कि वो छोटे बच्चे के दिमाग में भी फिक्स हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम आप मॉल लेके जाओ तो वो वही पैकेट पे हाथ रखेगा जो उसको लास्ट टाइम पसंद आया था. इनफैक्ट ही डोंट नो हाउ टू रीड द नेम ऑल्सो, येट ही विल बाय इट. सो ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. यू गो टू द मॉल, यू गो टू दैट place where the shampoos and conditioners and shower gel and all are kept. We always differentiate, like this is Nivea or this is Synthol. How? Because on the basis of the packaging they have. So it helps in identifying your product. It helps in making your product influence or come out in so many different products. Like आपका product उभर के आएगा in between 50 to 70 different options in front of us. So product identification it helps in. Then it's product protection. Yeah, obviously it helps in protection of the product. You know that, as I said that the health standards or sanitation standards, what is it? Health and sanitation are protection standards only. So if you are having your product packed, it is more safer than the open packet. So like that water bottle without seal is not safe, but that water bottle with seal or with lock over it, it means it is safe to use it and you will buy that. It protects the product. So what will it protect your product from? From spoilage. Then if you go for packaging of mobile phone, वो hard boxes के अंदर होते हैं. If you go for TV, thermocol लगाया हुआ होता है. If you go for fridge, उसको बांध के thermocol लगाते हैं. Why? To protect it from spoilage, from breakage. If you go buy some like this is not an example to worth discussing, so I won't say, but even you can say it as liquor also.
कोल्ड ड्रिंक्स ऑल्सो. तो दिस पैकेज आर पैक्ड इन सच अ वे दैट वो लीक ना हो जाए. पिलफ्रेज मीन्स बिगड़ जाना, लाइक गैस इन दी बालाजी वेफर पैकेट इज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पिलफ्रेज. डैमेज या इवन दैट एयर इन दी बालाजी पैकेट और लेस पैकेट, इट प्रोटेक्ट्स द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ब्रेक डाउन. क्लाइमेट इफेक्ट या मिल्क, टेट्रा पैक मिल्क और फ्रूटी और एप्पी यू ड्रिंक, इट्स इन टेट्रा पैक और टीन. तो क्लाइमेट का असर नहीं होता ये 3 लेयर के नीचे. सो इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम क्लाइमेट इफेक्ट्स ऑल्सो. This kind of protection is required during storing, distribution and transportation of the product. Yeah, it is necessary because many a times आज बनाई हुई चीज आज बिक जाए ऐसा जरूरी नहीं है. बालाजी ने बनाया हुआ वेफर का पैकेट शायद 6 दिन बाद भी बिकेगा, तो वो टूट भी सकता है. तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दैट वो लोग हवा भरते हैं अंदर. Facilitating use of the product. The size and the shape of the package should be such that it should be convenient to open. तो कैसा पैकेज होना चाहिए? वो पैकेट प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए जो प्रोडक्ट को यूज करने में मदद करे, इजीली हेल्प कर सके. सो यू नो कैसे होता है, लाइक कॉस्मेटिक्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, तो ये सब चीजों के अंदर आपको मालूम है, लाइक वो सॉफ्टरमाइसिन यू बाई तो वो लॉक किया होता है और वो लॉक ऐसे ढक्कन की तरह खुलने जाता है. यू हैव टू इन्वर्ट दैट लीड, जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको उल्टा करके ट्यूब में घुसाओगे तो वो खुल जाएगा. So that is facilitating the use of product. Now you go for TV also, तो टीवी के अंदर यू से लाइक साइड में दोनों जगह पे होल्स दिए हुए होते हैं, so उसमें हाथ डाल के आप बॉक्स को उठा सको. So this is the way, like we make it convenient to use it. We make it properly so that we can use it in a better way. वरना हो सकता है निकालते टाइम पे बॉटल या चीजें टूट भी जाए. So it should be convenient. जो हैंडल करना भी कन्वीनियंट होना चाहिए, खोलना भी कन्वीनियंट होना चाहिए, इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि खोलते ही टूट जाए या गिर जाए. Product promotion, obviously it helps in promotion. Package is also used for promotion purpose. A startling color scheme, I said you that color, photograph, that typeface. ये पार्ले जी is advertising such a large scale, you know, वो पूरा प्लेटिना कलेक्शन बनाया उन्होंने. प्लेटिना कलेक्शन किसके लिए? हाइड एंड सिक के बिस्किट्स है, मिलानो है. तो दे मेड अ स्पार्क, यू नो, लाइक वो अलग ही दिख के आते हैं. यू गो टू दैट प्रोडक्ट एंड यू अंडरस्टैंड इट, ओके ये पार्ले है. या आप फ्रिज की ओर जाओ, आपको देख के पता चल जाएगा ये मकैन के फ्रेंच फ्राइज है. वाई? बिकॉज ऑफ देयर कलर्स, बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट. अभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में भी वही कलर यूज किया, प्रोडक्ट का भी वही कलर है, एडवर्टाइजमेंट दिमाग में बैठ गया तो तुरंत प्रोडक्ट याद आएगा, अरे इसका एडवर्टाइजमेंट तो देखा है, अच्छा ब्रांड है, लेट्स बाय इट. So it helps in advertising because advertise करोगे तो आपको कुछ अलग दिखाना पड़ेगा ना, that our product looks like this, go buy it from the market, it's very grateful to use, you will be very happy using it, will provide you best services. So product promotion में भी help करता है, वो लोगों को attention खींचता है. वो photographs, वो color, वो packet, it will get saved in a person's mind and हम फिर से उसी की ओर जाएंगे. So it helps in product promotion also. ये तो हमने पढ़ लिया packaging. So अब हम start कर ले labeling. लेबलिंग क्या होता है? लेबल लगाना. वी आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि प्रोडक्ट के ऊपर लेबल होना विच सेज लाइक दिस इज मैगी, ब्रांड इज नेस्ले, प्रोडक्ट इज मैगी. सो मैगी, नेस्ले इज हैविंग डिफरेंट सिंबल, मैगी इज हैविंग डिफरेंट सिंबल, सो दैट मैगी इज अ लेबल. Dairy Milk, yeah, Dairy Milk is a name of product. This is which is printed. Brand is Cadbury, name is Dairy Milk. So that is called as labeling. Labeling means printing of name or printing some detail, printing some prices on the product. Like that 30% extra in this pack, it's label. 10 rupees munch, now at 10 rupees munch is now at 50% off. So it's at 5 rupees. So yeah, that is label. That labels are printed on it, printed on the packet so that you can differentiate it. So label is nothing but the detail or name or something about the product which is written on the packet. So label हमेशा पैकेट पे ही लगता है. So a simple looking but important task in the marketing of goods related to designing the label to be put on the package. बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज लेबलिंग ऐसा होना चाहिए कि वो लेबल इंसान के दिमाग में फिट हो जाए. लाइक यू नो, आजकल मार्केट के अंदर फर्स्ट कॉपी की चीजें, इट इज सो प्रोमिनेंट टू फाइंड फर्स्ट कॉपी ऑफ एवरीथिंग. लाइक यू गो टू दिस बॉम्बे और सम ऑफ द स्टॉल्स इन द सिटी मार्केट, you will find that specs or goggles which is having name like DKNY, Lacoste or Ray-Ban or Bulgari. So these are the brands जिसके spoofs, जिसके copyrights के बिना first copies आ रहे हैं या फिर rights के साथ first copies आ रहे हैं. How will you differentiate between the original and first copy? कुछ ज्यादा difference नहीं होता. Ray-Ban के spelling के अंदर वो A को इतना अच्छे से O कर देते हैं, Ray-Ban लिख देते हैं, you will feel that it's Ray-Ban only.
इट्स ऑल अबाउट लेबलिंग. सो आपका लेबल इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई कॉपी ना कर ले, इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए दैट लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर ले और याद भी रख सके. इतना अच्छा होना चाहिए, इतने अच्छे से डिजाइन किया होना चाहिए दैट कोई उससे ऑफेंड भी ना हो पाए. बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि कोई आप पे क्लेम कर देगा कि आपने उनसे चोरी किया है, और यू स्टोल देयर आइडिया, और यू आर यूजिंग देयर आइडिया विदाउट देयर परमिशन, or you are using something something which is improper. Like again I'll tell you, like some of the examples which I explain over here, they might not support the educational criteria, but considering you guys as to be a higher educational student, I guess that you guys will be facing the market, so you should know about it. So I'll use some of the examples like that. So it's a disclaimer kind of, that don't get offended or don't take it in the wrong way. It's just an example. So there was one more brand in the market. It's a FC UK. So that FC UK is a brand in which that C is also written ulta, and that brand, it leads to some abusive word if it's written in a correct way, but it is not permissible. Like a goggle manufacturing company ऐसा नाम use करे, it's not permissible. So they changed the word from that abuse. They interchanged two words and they made it FC UK. सो बेसिकली FC UK का कोई मतलब था नहीं, उन्होंने सिर्फ ब्रांड नेम बनाया ताकि लोग ऑफेंड ना हो जाए. सो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेनी टाइम्स वी गेट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ अवर लेबलिंग, दैट आपका लेबलिंग गलत है, झूठा है. लाइक रेड बुल, नो डाउट इट वाज टैगलाइन, बट आई कैन टेक इट इज एन एग्जांपल ऑफ द लेबलिंग ऑल्सो. लाइक दे सेड रेड बुल गिव्स यू विंग. डज इट रियली गिव्स अ विंग? रेड बुल ने ये एक स्टेटमेंट की वजह से कितने सारे लोगों के सामने केस लड़ा है, because people always used to claim, like you said Red Bull gives a wing but we never got a wing, give us our money back. So these are the things you have to keep in mind कि कोई अपने प्रोडक्ट को ऑफेंड ना करे, कोई अपने प्रोडक्ट के सामने आवाज ना उठाए. सो यू कीप दैट थिंग इन माइंड एंड यू डिजाइन द लेबल अकॉर्डिंगली. लेबलिंग के ऊपर मैंने और भी बोला, जैसे यू हैव हेल्थ रिगार्डिंग क्वेश्चंस, लाइक दैट लेबल ऑन द सिगरेट पैकेट, अगेन नॉट डिस्कसेबल ऑप्शन, बट येस वी विल डिस्कस, बिकॉज दैट स्मोकिंग किल्स इज अ लेबल विच इज फॉर अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब वो बंदा बिजनेस भी कर रहा है, बिजनेस बुरी चीज का कर रहा है, फिर भी अच्छे होने का लेबल लगा रहा है. हम सिगरेट बेच तो रहे हैं, बट हम बता रहे हैं दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. सो इट्स लाइक गंदा है पर धंधा है काइंड ऑफ, बट दिस इज सर्टिफाइड बाय लेबलिंग, दैट आपको ऐसे लेबलिंग करना है कि आपका ब्रांड ऑफेंड ना हो, आपका ब्रांड तुरंत दिखाई दे, आपका ब्रांड किसी और के ब्रांड का कॉपी ना हो जाए, कोई आपके ब्रांड से इन्फ्लुएंस होकर कुछ गलत डिसीजन ना ले. So many things are to be kept in mind, so that's why it is very important aspect to study over here. So label अलग अलग टाइप के होते हैं. सिंपल टैग भी होता है on a branded product. Like if you check out some of the things, like I will give you example of Being Human actually, because in Being Human if you go for shirts you won't find written Being Human. Or better we give example of Alan Solly. If you buy Alan Solly, वो लोग लिख के नहीं देते टी शर्ट के ऊपर कि ये Alan Solly है. Being Human की टी शर्ट पे Being Human लिखा हुआ होता है, तो वो उनके टाइप का लेबलिंग है, जो सीधा प्रोडक्ट के ऊपर इतना बड़े बड़े हैंडराइटिंग में Being Human लिखते हैं that we come to know that okay is wearing Being Human. But Alan Solly is a kind of brand जो पूरे टी शर्ट के ऊपर Alan Solly नहीं लिखता है, वो आपके लेफ्ट साइड पे हाथ के कॉलर के आपके स्लीव के लेफ्ट साइड के स्लीव के ऊपर एक छोटा सा डियर ड्रॉ करके देता है. दैट डियर शोज और रेनडियर, इट शोज दैट इट इज एलन सॉली. सो ये उनका ब्रांडिंग है. दिस इज हाउ दे आर लेबलिंग देयर प्रोडक्ट. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, लाइक यू गो टू मॉल यू विल फाइंड एज इंडिया गेट बासमती राइस. सो उसका लेबल है दैट इंडिया गेट और दैट बेस्ट और वॉट एवर कोहिनूर, वॉट एवर ब्रांड वी टॉक अबाउट, these are their labeling India Gate Basmati Rice. So that India Gate Basmati Rice is brand or labeling of that particular brand. बट वही डीमार्ट के अंदर देयर इज वन फूड काउंटर जहां पे एक बड़े से डब्बे के अंदर राइस भरे हुए होते हैं, वो लूज मिलते हैं, वो कोई ब्रांड के लिखे हुए नहीं होते, लेकिन फिर भी वहां पे भी लेबलिंग होता है कि ये बासमती चावल है या नहीं, कोई और टाइप का चावल है, क्या रेट है, कितने रुपए किलो का भाव है, कैसी क्वालिटी है, ए ग्रेड बी ग्रेड, ऐसे 2-3 अलग अलग वेराइटीज होते हैं वहां पे. तो वो भी एक काइंड का लेबलिंग ही है. तो लेबलिंग एक सिंपल टैग भी हो सकता है, या तो वो ब्रांड पे भी हो सकता है, अनब्रांडेड लोकल चीज के ऊपर भी ब्रांड टैगलाइन हो सकता है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, दैट लेबलिंग ऐसा नहीं है कि ब्रांड के ऊपर ही हो, लेबलिंग किसी भी चीज पे हो सकता है. लाइक यू गो टू अ लोकल शॉप ऑफ क्लोथ्स, तो वो लोग उसके ऊपर भी कोई ना कोई स्टिकर लगा के देंगे जिसके ऊपर प्राइस लिखा होएगा. भगवान जाने वो ब्रांड है भी या नहीं, बट दे विल शो इट एज देखो सर ये लेबल अच्छी चीज है, इट इज क्वालिटी प्रोडक्ट.
Why? Just by one label you can justify that it is quality product. So that is importance of labeling. So what will happen while you label the thing is, you will by that label आपके product का quality, pricing, how complex graphics which you use, or the part of, it's a part of packaging only. So what kind of brand you are, like a graphic of boat and patwar of the package of a popular brand, or aftershave lotion. So over here that boat or patwar they're talking about Old Spice brand. So yeah, it's innovative, it's a different kind of Old Spice. So in Old Spice they didn't show cruise ship. I'm not making my own meanings, guys. It's actually why they use that old boats, that yacht kind of, कि वो बोट के ऊपर एक वो कपड़े वाला जो लगाते हैं वो पतवार बोलते हैं उसको, तो बोट्स एंड पतवार. सो वो पुराने टाइम का बोट बनाया है उन्होंने, ये मॉडर्न टाइम का क्रूज नहीं बनाया उसके ऊपर, बिकॉज उनके प्रोडक्ट का नाम है ओल्ड स्पाइस. सो दे वांटेड टू कीप समथिंग ओल्ड ऑन दैट. सो उन्होंने वैसा ब्रांड और वैसा लोगो चुना. सो दैट इज हाउ मच डीप द पीपल थिंक्स इन इट. So that's what I'm talking about. Like it's very essential to think from each and every quality. Like wheel you talk about. So what's there? वो पाउडर के अंदर व्हील कहाँ पे यूज होता है? कोई कपड़े धोने में व्हील यूज नहीं हो रहा है, बट उन्होंने अपना पाउडर व्हील की तरह यूज किया है. What they said is like the wheel rotates and wipes out anything comes in between. Same way our product also wipes out all the stains in your gum. Then vanish. वो वैनिश के पीछे एक ऐसे लाइन वाला ऐसे चार्ट जैसा होता है, which shows that your दाग will get vanish. I'll show you once. Just wait. So see the labeling. This is called label. There's name written, vanish, oxy action, or all in one. What it does, the 10x oxy power. This all is a labeling. And see this logo. It shows like how it vanishes the stains or how it gets wiped out. So by the name word vanish, they are justifying this word vanish by this design. Same way we talked about Old Spice also. So here is Old Spice. We said that boats and patwar. So here it is. It's a boat and the patwar above it. So this is showing like they are trying to justify that जो उनका नाम है Old Spice, वैसा ही old उनका logo है, that old kind of boats. So इतना importance है that brand क्या labeling का, that you have to think everything in detail. So this is what I was talking about. सो हमने यहाँ पे वैनिश का एडवर्टीजमेंट देखा, वैनिश का लेबलिंग देखा. सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेट होता है. लेबल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, its contents, method of use, etc. The various functions performed by label are as follows. So we'll go for that later. This note this down. Make a paragraph or arrow and write this point. Labels are useful in providing detailed information about the product. Write this line. Its contents and methods of usages, etc. So note this down. This is an important statement. So that's what was there. No, we'll see that advertisement again. Here it is. It shows what all it does. Like it removes stains, it whitens the product, it brightens the color. It's an all-in-one product. It's a color safe. Like आपका color नहीं जाएगा if you wash it in this powder. So it's giving details about the product. It's a premium quality product. See, it's a premium 10x oxy powder versus premium detergent. So it's showing that our product is premium to the premium. वो premium brand से भी ज़्यादा अच्छा है हमारा product. So this is how it shows. Like आपको ये कैसे, फिर I hope like you guys have someday checked out your shirts or your t-shirts. उसको उल्टा करके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे अंदर एक चिट्ठी लगी हुई होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है that don't iron it or don't wash it in a warm water or don't shrink it, don't try to dissolve the colors, it might affect the quality of the product. So वो हमें गाइड कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट यूज कैसे करना है. That is even one more important thing. वो भी एक काइंड का लेबल ही है. So लेबल का इम्पोर्टेंस. So you write down these points, you write the statement. What are the functions performed by label? Then write down various functions performed by labeling are: number 1, describe the product and specify its contents. I said you specified its contents. So we'll take the example they have given over here only. Like label मतलब क्या? Like it specifies, describes the product. वो product describe करता है. वो बोलता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है भाई, हमारा प्रोडक्ट वैनिश है. या फिर I'll give you one better example for this. So भाई ये है डेयरी मिल्क और ये डेयरी मिल्क का बैक साइड है. So मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या होता है लेबलिंग. So you can see like it says caramel. It's like ये प्रोडक्ट देख के ही पता चलता है that okay इसके अंदर कैरेमल है.
because they have labeled it that Cadbury Dairy Milk Caramel. Then moving to the next product, say Cadbury Dairy Milk Fruit and Nut Chopped, means इसके अंदर fruit and nuts होंगे chopped किए हुए. We can come to know how by reading this label. Then again, this is one more Cadbury Dairy Milk Silk. What it is? It's a heart. Yeah. On looking at this, you'll come to know that heart pop. It's written over heart pop. So you can come to know from here that heart pop, that this heart is going to pop out. And ये देख के ही पता चलता है that this is not for normal occasion. ये तो कोई अलग occasion के लिए भाई, ये तो Valentine's Day के लिए है. So ये देख के पता चलता है that okay, जो बंदा पूरी जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड को एक साल के अंदर नॉर्मल डेयरी मिल्क गिफ्ट करता है, he will gift this dairy milk on the day of Valentine. Why? Because it is differentiated. They launched this product before Valentine. So it shows like this is the thing. It differentiated the same dairy milk silk. ये वही dairy milk silk है, उसका टेस्ट भी वही है, but it's having different kind of usage. उसका use यहाँ पे लिखा हुआ है. वो advertisement में भी they say it as like it's specially for your loved ones. So this is what the thing, like same product, same content, same brand, same price. लेकिन उसका importance change हो जाता है just by one label. So that is the importance of labeling. इसको सिर्फ labeling के point of view से देखना please. So now here it is the back side of the dairy milk. It says like we'll read this. It says a one serve, like one serve means in this one serve or one piece of dairy milk, what you will get is 6 squares. 6 square है इसके अंदर. फिर recommended servings as in both the grams, उन्होंने दिखा हुआ है कि हम grams के हिसाब से दे रहे हैं. 6 square का एक है. फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है एनर्जी, कितना एनर्जी देता है 555 किलो कैलोरी. Proteins 2 grams, fat 7.4, saturated fats 4.5, carbs, carbohydrates 14.3, sugars 13.9, sodium 21 grams. उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है. But see, like this is the way I wanted to describe it. Like how much detailed they give it. Like average nutritious information, serving per pack is 10. 10 जने खा सकते हैं एक एक बाइट ऐसे. Now see they have said like पर सर्विंग अप्रॉक्स 6 स्क्वायर्स. अगर 6 स्क्वायर्स खाओगे तो इतना चीजें आपके पेट में जाएगा. उसको परसेंटेज वाइज डिस्क्राइब किया है. और ये एक 100 ग्राम के बार के अंदर इतना एनर्जी होता है. बट ये 100 ग्राम का बार है ऐसा जरूरी नहीं है. 100 ग्राम के बार में ये चीजें इतनी चीजें होती है. गेटिंग? बट ये बार 100 ग्राम का नहीं है. ये बार तो सिर्फ 25-30 ग्राम का ही होगा. सो वो उन्होंने पूरा डिटेल नहीं देते, वो हम पे छोड़ दिया कि आप समझ लो. व्हाट इट सेज, परसेंटेज, रीड दिस लाइन. परसेंटेज डेली इंटेक्स आर बेस्ड ऑन द एवरेज एडल्ट डाइट ऑफ 8,700. सी उन्होंने यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया. उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि हमने तो एवरेज एडल्ट एक दिन में 6 टुकड़े खा सकता है डेयरी मिल्क का, वो गिन के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है. वो चीज चेंज भी हो सकती है आपके खाने के हिसाब से. बट दिस इज अ लेबल. इतना डिटेल में देना पड़ता है एंड इतनी चीज डिस्क्राइब करते हैं ताकि वो हम तक मैसेज पहुंचा भी सके एंड कहीं खुद फंस भी ना जाए. सो दिस इज ऑल्सो लेबलिंग. ये बैक साइड का लेबलिंग है. So yeah, this was what I wanted to show you. Even see this, I wanted to show this crimp. This is barcode, you know all very well. The barcode is also a part of labeling. फिर labeling में और क्या चीज होती है? They label it. इसके अंदर I'm not having example right now, but एक और लेबल होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है. वो मैन्युफैक्चरिंग कोड क्या होता है? डेयरी मिल्क पूरे इंडिया में 4 जगह पे मैन्युफैक्चर होती है. आप जो डेयरी मिल्क खा रहे हो वो कौन सी जगह पे मैन्युफैक्चर हुई है वो कोड से पता चलता है. आपको बैच नंबर लिखा होता है प्रोडक्ट के पीछे. We are having this product over here. I don't know whether it's visible or not, but see यहाँ पे कहीं पे एड्रेस दिया हुआ है. यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है. So this is also labeling. So labeling में मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल भी दिया हुआ होता है. ये 54 ग्राम्स का बार है, ये भी दिया हुआ है. ये 54 ग्राम्स का बार है, ये इसका कोड दिया हुआ है. सी फॉर कोड एंड पैकेज डेट, सी अंडर द सील. ये सील के अंदर इसको ओपन करो, उसके नीचे लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, कब बना था, कब एक्सपायर होएगा, क्या उसके अंदर कितने कैलोरीज, कितना क्या है, क्या इसका बारकोड कितना है, कौन सा लाइसेंस है उन लोगों के पास, ये FSSAI का, फूड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का, FSAT का. सो उनके पास कौन कौन सी परमिशंस है, ये सब कुछ लेबलिंग का पार्ट है. इतना डिस्क्रिप्टिव लेबलिंग करना पड़ता है सो दैट कस्टमर के साथ पूरा ट्रांसपेरेंसी रहे. सो ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को भी, ये प्रोडक्ट को भी डिस्क्राइब करता है और ये ऑल्सो स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है, कंटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट. सो ये जो एग्जांपल दिया ना मैंने, ISO 9001 9001 is to 200,
ये एक सर्टिफिकेट का नाम है जो ISO देती है, जो दिखाता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ट्रस्टवर्दी है, ये उसका प्रूफ है। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये व्हाट दे वांट टू से इट इज लाइक यू जस्ट रीड, यू जस्ट नोट डाउन द पॉइंट, वी विल राइट दिस सब पॉइंट्स लेटर, उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम लोग। But for now this is the important, like this what does label shows? It shows about the product and it also shows its contents. Moving on again, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, वो भी सेम चीज हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ी पैकेजिंग के अंदर, ब्रांड आइडेंटिफाई करने में सेम यहीं पे भी वही है, लेबल से ब्रांड आइडेंटिफाई होगा। अभी डेयरी मिल्क लिखा हुआ होता है एंड डेयरी मिल्क के साथ कोई और भी ऐसा ही प्रोडक्ट होगा जो डेयरी मिल्क जैसा ही लिखा होगा, एक आध वर्ड अलग होगा। सो दिस इज हाउ इट डिफरेंशिएट। अभी बालाजी की जगह पे बालाजी लिख के भेजते हैं लोग, फास्ट ट्रैक की जगह पे फैक्ट ट्रैक लिखी हुई ब्रांड्स भी होती है। सो योर लेबल इज द थिंग जो आपके ब्रांड को दूसरों की ब्रांड से डिफरेंशिएट करता है। मैगी का लोगो ही ये चिंग्स चाइनीज वाला सेम मैगी जैसा लोगो नहीं यूज करता, मैगी जैसा लेबल नहीं यूज करता। मैगी का लेबलिंग अलग है, चिंग्स चाइनीज का लेबलिंग अलग है, नॉर का लेबलिंग अलग है। सो दे आर डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर राइवल्स प्रोडक्ट बाय लेबलिंग। सो वो आपके प्रोडक्ट को लोगो से अलग करता है, आपकी ब्रांड को दूसरों की ब्रांड से अलग करता है। यू गो टू रैंगलर, रैंगलर अलग तरीके से लिखा है, बीइंग ह्यूमन अलग तरीके से लिखा है, यूसीबी अलग तरीके से लिखा है, पैपेजिन्स अलग तरीके से लिखा है, मुफ्ती अलग तरीके से लिखा है, लुई विटॉन अलग तरीके से लिखा है। और यू गो टू एनी ऑफ द ब्रांड्स whichever we talk about, whether it's Allen Solly, H&M, whichever brands we go for, सबने अलग टाइप का लेबलिंग किया है, सबने अलग किस्म का ब्रांडिंग किया है। वो सब चीज डिफरेंशिएट होता है। आपके 5 फ्रेंड्स अलग अलग ब्रांड पहन के आएंगे ना, सिर्फ एक सिंबल देख के पहचान जाओगे, सिर्फ एक नाम देख के पहचान जाओगे कि अरे यार ये तो ये ब्रांड पहन के आया था। सो ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट या ग्रेडिंग करने में भी हेल्प करता है। कैसे ग्रेडिंग करने में कैसे हेल्प करता है? आज एक कंपनी की कितनी सारी चीजें होती है, एक कंपनी हम लोगों ने लास्ट टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर देखा था, मैंने क्या बोला था, वो बंदा लक्स भी मैन्युफैक्चर करता है, वो नंबर 1 भी मैन्युफैक्चर करता है, वो डव भी मैन्युफैक्चर करता है। अभी एक ही सारे सोप्स ही बनाते हैं, लेकिन सारे सोप्स अलग क्वालिटी के हैं। वो उनके पैकेज और उनकी लेबलिंग से पता चलता है। एक अच्छी पैकेज होती है ना, जैसे पार्क एवेन्यू का प्रोडक्ट है, तो उसका लेबलिंग देख के पता चलता है ना ये कुछ तो क्लासी है यार। सो दैट इज हाउ इट्स डिफरेंशिएट। वन मोर एग्जांपल विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इट्स ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल टी का चाय का एडवर्टीजमेंट आता है। सो उसके अंदर अलग अलग होती है, दैट येलो, रेड, ग्रीन लेबल, या दैट येलो, रेड, ग्रीन लेबल, ये सारे लेबल्स किसी और चीज में भी आता है। आई नो दैट वेरी वेल, गाइज विल बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट, बट लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट। हाँ, आप सोच सकते हो हाँ चलो एग्जाम्पल लिया ही है तो अगेन गिविंग सेम डिस्क्लेमर, डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ये कैसे होता है। सो फॉर एग्जाम्पल वी टेक अबाउट अ लिकर बॉटल। सो लिकर बॉटल के ऊपर ग्रीन लेबल लिखा होता है, रेड लेबल लिखा होता है, व्हाइट लेबल लिखा होता है, ब्लैक लेबल लिखा होता है। सो व्हाट डज दिस लेबल्स मीन्स? दिस लेबल मीन्स समथिंग, इनका कुछ मतलब है। ये ग्रेडिंग करने में हेल्प करता है। आपको ग्रीन लेबल, ब्लैक लेबल मीन्स मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट ड्रिंक ऑब्वियसली, बट या इट मीन्स दैट ये जो लेबल्स है उसके बेस पे पता चलता है कि वो लिकर कितना पुराना है, जितना पुराना उतना ज्यादा रेट। सो इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग। सेम विद दिस येलो, that red, green. So this red is something red tea I'm talking about, red label tea. It says it is having something energetic, कुछ गर्म चीज है उसके अंदर, अश्वगंधा, blah blah blah, whatever it is. Green label, it is a herbal tea. ग्रीन लेबल से ये पता चलता है। येलो लेबल इज ए रेगुलर मसाला टी। सो ये इन्होंने अपना ग्रेडिंग किया है प्रोडक्ट का येलो, रेड एंड ग्रीन लेबल के नाम पे। सो लेबल की मदद से, खाली येलो लेबल, ग्रीन लेबल, रेड लेबल चाय पे लिख देने से पता चलता है कि ये चाय किस क्वालिटी की है। Same way, one best example for you guys is you guys will be definitely using hair shampoos and conditioners and all. In conditioners you use best brands only, or probably like L'Oreal or Garnier something. So here it is, ये है grading का नतीजा। Like you see all are L'Oreal shampoos, ये सारे L'Oreal के professional shampoos है which are used at salons, different types of branded salons. सो सबके अंदर अलग अलग है। ये इल्यूमिन कॉन्ट्रैक्ट है, ये विटामिन रिच है, ये इम्पोज रिच है, ये इंफीरियर रिच है, ये वॉल्यूमेट्रिक शैम्पू है, ये लॉस शैम्पू है, ये एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू है। तो ये सारे इसका ग्रेडिंग है। अब ये सारे का इंपॉर्टेंस अलग अलग है सबके लिए, सारे का प्राइसिंग अलग अलग है, सारे का लेबलिंग से, ये कलर और उनके ऊपर लगे हुए लेबल से पता चलता है। कैसे? आई नो यू गाइज कैन नॉट सी, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स ल्यूमिन कॉन्ट्रैक्ट।
or you can see like it's a vitamin color, or it's an enforcer, it's a nutrifier, it's a volumetry. यहाँ पे लिखा हुआ है it's a loss unlimited and it's an absolute repair. सो ये चीज देखने से, यहाँ पे ये लेबल देखने से पता चलता है दैट ओके ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से ऐसे अलग है, ये हमारे काम की है या ये हमारे काम की नहीं है, इसका रेट ज्यादा है, इसका रेट कम है. ये यहाँ पे पढ़ने से, ये लेबल्स पढ़ने से पता चला. यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन है, आई एम नॉट एबल टू सी, बट या इट शोज लाइक उसके अंदर क्या क्या चीजें है, कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें है, सबके अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई है. So this is how the grading works. This is labeling. This is grading with the help of labeling. Grade की मदद से लेबल करते हैं. एक और चीज है, you guys are very much aware about it. If girls, mostly girls do for hair color. So hair color के अंदर ये चीज होती है like that colors लिखे होते हैं, 1 number, 2 number, 2.5, 3, 4. ये सारे कलर्स लिखे होते हैं. ये नंबर्स के हिसाब से कलर अलग अलग होते हैं. 1 means black, absolute black. 1.5 means a lighter black. 2 means grey. 3 means burgundy. 4 means brown. ये सारे, आई एम नॉट फेकिंग इट, दिस इज द रियल थिंग. ऐसे लिखा हुआ होता है ना, प्रोडक्ट के नीचे कलर लिखा होता है, नंबर लिखा होता है. यू ऑलवेज बाय दैट सेम नंबर. सो वो नंबर से ग्रेडिंग चेंज हो जाता है, वो नंबर का अलग अलग प्राइसिंग होता है. हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट, ग्रेडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट. Then it also helps in promotion of the product. Yeah, as I said you, जैसे हमने अभी लॉरियल का एग्जांपल देख लिया, इसके अंदर इतना अलग अलग चीजें लिखी हुई है, वो कंटेंट देख के भी फील लाइक ओके यही चीज बाय करनी है यार, ये कितना अच्छे से दिखाया हुआ है हमारी चीजों को. So I will read this. This point is having one example also. That's why you keep noting down, guys. Points note करते रहना. An important function of a label is to aid in promotion of the products. A carefully designed label can attract attention and give reason to purchase. अगर एक अच्छा लेबल होगा तो हमें एक अटेंशन देंगे उस प्रोडक्ट को, एंड अगर अटेंशन देंगे तो वी विल रीड समथिंग, ये जैसे लॉरियल में पढ़ा वैसे, एंड वी विल थिंक कि हाँ ये बाय कर सकते हैं, ये मेरी नीड्स के हिसाब से सही है. तो अट्रैक्टिव होगा तो कोई देखने आएगा ना, वरना तो मुंह फिर के चले जाएगा. वी सी मेनी प्रोडक्ट लेबल्स प्रोवाइडिंग प्रमोशनल मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, या डू राइट दिस एग्जाम्पल. ये पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल जरूर लिखिए. एग्जाम्पल, द पैक ऑफ पॉपुलर आंवला हेयर ऑयल स्टेट्स बालों में दम, लाइफ में फन. या सो दिस इज हाउ दे आर अट्रैक्टिंग अस. The label on the pack of a brand of detergent powder says keep cloth look good and your machine in top condition. So what they say is like, ये सिर्फ कपड़े नहीं, आपके मशीन का भी ध्यान रखेगा. Labels play important role in sales promotion schemes launched by companies. For example, as I said you, like 40% off, ये मैंने पहले ही बोला आपको, या buy one get one या 50% extra. For example, label on the package of a shaving cream mentions 40% extra, और package of a toothpaste mentioning free toothbrush inside. ये भी एक kind का label ही है, ये सेल प्रमोशन में आपको हेल्प करता है. And the last is providing information required by law. I said you, सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. So this is what I'm talking about. ये लॉ प्रोवाइड करती है. आप बोला ना गंदा है पर धंधा है, तो धंधा तो करेंगे ही, बट लॉ की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगी. हाँ, हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जान बचाना, ठीक है. हम लोगों ने टैगलाइन ऐड कर दिया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हमने अपना काम कर दिया. अगर फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो अपना बिजनेस करेंगे. सो लेबल ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ से बचे रहने के लिए. वो FSSAI जो हमने डेयरी मिल्क के कोड के पीछे देखा, वो लाइसेंस है, ISO सर्टिफिकेट लाइसेंस है. हेलमेट्स के ऊपर ISI का मार्क लगा हुआ होना चाहिए. दैट ISI मार्क्स इज ऑल्सो अ लेबल, वो भी एक मार्किंग है आपकी क्वालिटी का. सो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स, दैट लॉ में भी हेल्प करता है. एग्जाम्पल ये भी लिखिए गया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर या डू राइट लॉरियल, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर डू राइट लॉरियल ऑल्सो. एंड वहां पे जो ब्रुक बॉन्ड, ये ग्रीन लेबल, रेड लेबल, येलो लेबल टी है, वो एग्जाम्पल भी प्लीज लिखिएगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और ब्रांड, यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर. कोई भी एक एग्जाम्पल आपके हिसाब से लिख दो, डेयरी मिल्क लिख दो, मैगी लिख दो, कुछ भी लिख दो. And the first point we talked about is describes the product and specify its content. यहाँ पे जो हम लोगों ने डेयरी मिल्क की बात करी थी, वो you can write the key contents क्या होते हैं. एग्जाम्पल लिख दो, like 100 grams of dairy milk, ऐसे ही लिख देना भाई, उसके अंदर कोई घुसने की जरूरत नहीं है. If you want then yet I will tell you, I'll show you one so that आपको ऐसा ना लगे कि सर ने दिखाया नहीं. So ये देख लीजिए. You can write something like this as an example. Yeah, I hope it's visible.
एनर्जी, प्रोटीन, फैट टोटल, सैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये सारा कंटेंट्स के बारे में लिखते हैं. तो इसमें से एक दो चीजें लिख दो. फॉर एग्जांपल 100 grams ऑफ डेयरी मिल्क कंटेन्स 2 grams प्रोटीन, 7.5 grams फैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट. कंटेंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं. अभी उसका इमेज मेरे पास नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल आप बालाजी का वेफर लो और पीछे घुमाओ और इंग्रेडिएंट्स चेक करो. दे विल बी राइटिंग ओवर देयर कि ये मसाला है, वो मसाला है, सॉल्ट है, चिली पाउडर है, पोटैटो है, ये अनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर, ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ होता है. इट सेज कंटेंट, ये प्रोडक्ट के अंदर क्या है. एज फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज हेड शाह, आई एम अ जैन पर्सन, सो आई डोंट ईट एक्चुअली जैन. बट अगर मैं जैन खा रहा होता तो मैं कैसे पता लगा था कि ये वेफर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेफर तो ऑब्वियसली आलू वेफर इज नॉट जैन ओनली, बट केले की वेफर भी गार्लिक वाली आती है. तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये जैन है कि नहीं. ऑब्वियसली आई टर्न द पैकेट, आई सी द लेबल. वो लेबल के अंदर कौन से कंटेंट्स है वो पढ़ूंगा और पता चलेगा नहीं ये जैन है या नहीं है. सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स पीपल. So yeah, that's all for today. Labeling हो गया है अपना. We'll start with the pricing in next lecture. Pricing is also a fun part to do with because I said you अलग अलग है. अच्छे examples लेंगे. Apple है, Samsung है, Lenovo है, सबका अलग अलग pricing techniques है. We will follow that technique only. Example based ही पढ़ाई करना है, पूरा marketing. So ये just लिखते जाओ examples because example लिखोगे ना तो easily याद रहेगा. So एक दो लाइन लिखने के लिए प्लीज आप लेथार्जी मत लेके आना, examples लिखते जाना.